make the recording. Oh, it's already been recording. Okay, right. Let me share the screen. This is the topic. We have 28 participants around, and there is distortion. So let me mute all of you, so that I have muted all of you, and let's start today's lecture. Wait, as you people can see, so this is chapter number 4, inventory management. That's the main topic. Wait, if you have the book, then it's okay. Otherwise, I can share, this scanned copy of today's lecture. I've simply scanned it from the book, and I'm sharing it with you. This is chapter number 4, and page number is 71, right? So let me admit a few of the new students, and let me mute all of them. All right. Right, the learning objectives of this chapter is that why do firms carry inventory? What are the various types of inventory carried by an organization? Of course, this is all about the inventory management, right? How do we maintain inventory? What level of inventory that should be maintained with the firms and organizations? And why do organizations or companies or production or the manufacturing units, they maintain certain inventory? What are the components of cost? What are that are affected by inventory decisions? Of course, cost is very much involved in all these decisions. I mean, maintaining a certain level of inventory, this decision that is directly related to the cost, right? And how can a firm reduce inventory in the organization? Of course, every organization that is looking for the reduction of inventory, because to retain and carry and store a bigger level of inventory, that is not as easy as somebody can think for any organization. So there must be a minimum level of inventory that should be maintained or kept with certain organizations. How do firms determine the optimum level of cycle, stock, and chain? That's very important. So what is the formula? I mean, how do companies come to know that this is the right level of inventory we should keep or we should carry? And how do firms decide on requiring the level of safety, stock, and chain? So, and how do you make sure that your company must have, maintained this kind of inventory or this kind of stock for smooth operations of your company? So these are few important things that we could discuss in this chapter. Reggie, moving forward. Right, I'm going to show you a figure, that's figure 4.1. So whenever we talk about the inventory, no matter you are running your manufacturing firm, your manufacturing concern, company, organization, no matter your distributor, and no matter your wholesaler, no matter your retailer. So all these companies, I mean, starting from the production unit or manufacturing unit up to the retailers, everyone has to maintain certain inventory. And everyone does not maintain, too much bigger level of, inventory on the lower level of inventory. So everyone is looking for the right level of inventory that is okay for the right working of the organization or the smooth working of the organization. So, the author has taken a figure from the Indian company. There are 10 Indian manufacturing companies, Indian Oil Corporation Limited, this one, then the Reliance Industries Limited, right? And the third one is Bharat Petroleum Corporation, then Hindustan Petroleum Corporation, Tata Motors, Tata Steel Limited, Hindalco Industries Limited, Mahindra and Mahindra Limited, GSW Steel Limited, and Steel Authority of India Limited. And it has taken, inventory levels of 2
eras. One is 2003 and then is 2013. So it has taken, you know, the inventory level and their performance right after the gap of one decade or 20 years. Right, 2003, even the lighter shade that represents 2003 and the darker shade that represents 2013. Right, so Steel Authority of India Limited, its performance was in 2013 this one, and in 2003 this one. Right, so if we look at what does it show, I mean the companies like oil related companies, I mean Indian Oil, one oil company, then petroleum is again petroleum, right, and there are few steel companies, steel, Mahindra and Mahindra probably like steel, industries like steel. This is automobile, right, and this is something different. And there are few 2 to 3 oil companies, 2 to 3 steel companies, 1 to 2 automobile companies. So when all the companies they started, you know, focusing on maintenance of right inventory level, their operations, their performance there was increased, right, 2003 and 2013. Like talking about the oil corporation performed better because darker side is 2013, right, his performance was below than 6 point whatever the 6 is in 2003, and in 2013 it is beyond that level, right. Talking about the Reliance Industry, 2013 it is performing better. Bharati Petroleum, when it started, you know, maintaining the right inventory level, it is performing better in 2013. So these are the companies. I mean, if you're running a fuel company, or the oil company, or the petroleum company, and you are maintaining the right level, it means you're reducing your carrying cost, your keeping cost, your maintenance cost, your general inventory cost. And when you are maintaining the right level, your performance is better overall, right? और जो स्टील वाली है उसकी परफॉर्मेंस कम हो गई है. तो आप ये देखते हैं कि आपकी कंपनी क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, और जब आप राइट लेवल मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, आपकी कॉस्ट कम हो सकती है. ठीक है. और कुछ कंपनीज में इस 10 सालों में जिन्होंने काम किया, कुछ कंपनीज में उनको फील हुआ कि वो परफॉर्म बेहतर कर रहे हैं एक लो इन्वेंट्री लेवल के साथ, राइट इन्वेंट्री लेवल के साथ, और कुछ लोगों को लगा कि वो कम है. फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी 2013 में परफॉर्मेंस कम रही है, 2003 में परफॉर्मेंस ज्यादा रही है. उसको ज्यादा स्टॉक रखना पड़ता है बेहतर परफॉर्म करने के लिए, और 2013 में उसने अपने स्टॉक को रिड्यूस किया तो उसकी परफॉर्मेंस भी ओवरऑल कम हो गई, राइट. अगर मैं JSW स्टील की बात करूं तो इसकी भी 2003 में ऊपर है परफॉर्मेंस, 2013 में नीचे है. लेकिन अगर मैं उसके कंट्रास्ट में इफ आई टॉक अबाउट यू नो oil corporations, the petroleum companies, they are performing in a reverse way. Bharati Petroleum, that was performing better in 2013, right, with the lower level of inventory, and that was performing less optimal in 2003. So this is how कि आपकी कंपनी क्या है, अगर आप सही लेवल मेंटेन कर पाएंगे तो you could enjoy a better cost benefits. So there are different types of stocks or inventories. इन्वेंट्री की कुछ टाइप्स वो आपको बताते हैं कि जो डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन है, और उसको कितनी तरह की स्टॉक्स या इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है. फर्स्ट वन इज द साइकिल इन्वेंट्री और द साइकिल स्टॉक. साइकिल इन्वेंट्री और साइकिल स्टॉक का मतलब ये है कि आपकी बेसिकली जो चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो बैचेस में होती है. ठीक है, डिफरेंट शिपमेंट्स होती हैं, डिफरेंट कंसाइनमेंट्स होती हैं, डिफरेंट बैचेस होते हैं. तो आपने ये देखना है कि जी मेरा बैच जो है, पहला बैच, उसमें मेरा प्रोडक्शन साइज क्या है, या मैं कितनी क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ, और जो मेरा बैच 2 होगा, राइट, उसमें मैं कितनी क्वांटिटी को मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ और कितनी क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ. तो साइकिल इन्वेंट्री इज ऑल अबाउट कि आपको because organizations, they are working in lots, they are working in batches, right, they are working in different sizes of the consignment, so you are supposed to keep a certain cycle inventory, because this cycle is a smaller one, the next cycle is the bigger one, this batch is a smaller one and that batch is bigger one. तो आपने देखना है, आपने उस तरीके से लेके चलना है कि मेरे पास जो प्रेजेंट है, जो मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, उसका क्या साइज है, और जो नेक्स्ट आ रहा है बैच उसमें क्या होगा.
तो दैट कैन हेल्प यू टू मेंटेन सेफ्टी स्टॉक. सेफ्टी स्टॉक मीन्स जब आपने ये देखना होता है कि इफ देयर इज सर्टन अनसर्टेनिटी इन द डिमांड, राइट, एंड यू नीड टू सेफगार्ड द मिनिमम लेवल ऑफ योर स्टॉक्स, कि अगर मेरे पास डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है, मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है कि कल क्या होगा. सेम इज द केस विद क्या कि जब कोविड-19 दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, राइट, जब चाइना से स्टार्ट हुआ, वो अमेरिका गया, वो इधर गया, वो उधर गया, फिर पाकिस्तान में भी आ गया. अब पाकिस्तान में जब वो आ गया तो अब लोगों को क्या लगा कि लोगों को ये लगा कि शायद मतलब ये जो वायरस है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा और पता नहीं चीज़ें बंद हो जाएंगी, हमें खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी. तो लोगों ने स्टोर्स की तरफ भागना शुरू कर दिया. अब जब स्टोर्स पे एक बार रश पड़ा तो उनके पास क्या हुआ, सेफ्टी स्टॉक नहीं था, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस हद तक चीज़ें जो है बढ़ जाए. फिर जो मेडिकल है, जो आपको पैनाडॉल से लेके वो ऊपर जितने भी हैं, हैंड सैनिटाइजर एंड मास्क और ग्लव्स और ये सारी चीज़ें, उनकी डिमांड जब बहुत बढ़ गई तो पीछे से सप्लाई बहुत कम हो गई. अब डिमांड दैट वाज एक्सीडिंग, सेफ्टी स्टॉक था नहीं. सेफ्टी स्टॉक इसलिए नहीं था क्योंकि इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी का अंदाजा ही नहीं था जो हैंड सैनिटाइजर कंपनी बना रही थी. अब खुद सोचे ना कि कोविड-19 से पहले हम लोग कितने सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करते थे. कभी सोचा ही नहीं था. ठीक है, ऑफिस में कभी कोई एक आध पड़ा हुआ है और आपका दिल नहीं कर रहा जाके वॉशरूम में अपने हाथ धोने का, तो आप जाके सैनिटाइजर यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं. तो देयर वाज अ सेफ्टी स्टॉक. तो उसकी वजह से जब लोगों को पता लगा कि यार वायरस तो लंबा चलेगा और इसकी जो डिमांड है दैट वुड बी कंटिन्यूअस, तो दे स्टार्टेड सरप्राइजिंगली इंक्रीजिंग द प्राइसेस. कि ठीक है, वो मतलब दे वर ब्लैकमेलिंग द कंज्यूमर बिकॉज दे नो कि यार इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई और सप्लाई पीछे से है नहीं है. सो इट इज अ राइट टाइम टू एक्सप्लॉइट योर कंज्यूमर. दिस इज अनफेयर प्रैक्टिस, दिस इज मैल प्रैक्टिस, दिस शुडंट बी एनकरेज्ड. सो दिस वाज अ सेफ्टी स्टॉक. तो पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें जो हैं हो जाती हैं. जो वीक इकोनॉमीज होती हैं उसके अंदर ये सेफ्टी स्टॉक रखने पड़ते हैं बिकॉज द मार्केट इज unpredictable because the demand is uncertain, right? Decoupling stocks, decouple होता है चीज़ों को separate कर देना. अच्छा, इसमें सिंपल वो ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन दे हैव टू टेक डिसीजंस बोथ एट द कॉर्पोरेट लेवल, एट द बिगर ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव एंड एट द डिपार्टमेंटल लेवल. कि डिपार्टमेंटल लेवल पे भी उसको करना पड़ता है. एक मिनट जी, मैं जरा आपको कर रहा हूँ म्यूट. मैं कॉल जी. तो डीकपलिंग स्टॉक, हेलो, सुन रहे जी लोग? जी जी सर, सुन रहे हैं. जी सर. राइट 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 जी. अच्छा, तो डीकपलिंग स्टॉक ये होता है कि आपने चीज़ों को डीकपल करना होता है. डीकपल से मतलब चीज़ों को सेपरेट करना. सम टाइम क्या होता है कि आपकी जो बड़ी फर्म है, जो बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है, जैसे हम निशात लीलन की बात करते हैं, निशात प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड जो भी इसकी कंपनी है, राइट जी, उसका सेटअप है फॉर एग्जांपल खरोड़ियावाला में, उसका एक सेटअप शेखुपुरा में काम करता है, उसका एक सेटअप लाहौर के पास वो भाई फेरू में काम करता है, तीसरा सेटअप उसका कहीं होता है. तो समटाइम्स क्या होता है कि आपकी प्लानिंग एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, यानी आपके हेड ऑफिस लेवल, कॉर्पोरेट लेवल पे डिफरेंट हो जाती है, और आपकी ब्रांच लेवल पे या आपके ग्राउंड लेवल पे जहाँ बैठ के जिस मार्केट में आप लोग सर्व कर रहे होते हैं वहाँ डिफरेंट हो जाती है. जैसे डिफरेंट मार्केट्स में कंज्यूमर का नंबर, कंज्यूमर का डिमांड डिफरेंट होता है, राइट. और आपने ये देखना होता है कि आपकी एक प्लानिंग चल रही होती है
कॉर्पोरेट लेवल पे, राइट। एक प्लानिंग आपकी चल रही होती है नीचे रीजनल लेवल पे, एक प्लानिंग आपकी चल रही होती है नीचे एरिया लेवल पे, राइट। तो आपने ये देखना होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि पूरे फैसलाबाद का जो बिजनेस है वो एक साइड पे कर लें, और जो आपके 8 बाजार हैं जिनमें ये सारा आपका यॉन मार्केट और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, उनका सारे का सारा बिजनेस एक साइड, मतलब रेल बाजार और ये आपका जो है वो कारखाना बाजार, और जो ये गोल्ड वाले और ये जो सूतर मंडी जिसमें लगती है, और इन सारी चीज़ों का बिजनेस एक साइड पे कर लें। सो योर the market consisting of a traditional bazaar is even bigger than the entire business of the city. Sometimes फिर आप इस तरीके से करते हैं, तो you need to plan different stocks level at every level. So decoupling stock भी आपको different जगहों पे different अंदाज में maintain करने पड़ते हैं. Anticipatory एंटिसिपेशन इन्वेंट्री, एंटिसिपेशन से मुराद भी वही चीजें मुझे मिला मेल से मेरी कौन आ रहा है, अच्छा। तो इसमें भी आपने ये क्या देखना होता है कि आप ये देखते हैं कि एंटिसिपेट करना होता है ना, सो यू नीड टू लुक इनटू फ्यूचर। कि जी आपको पता है अब बड़ी ईद आ रही है, बड़ी ईद पे क्या होगा कि किस चीज़ की डिमांड बढ़ सकती है, किस चीज़ की डिमांड कम हो सकती है। उसके बाद जी क्या आ जाएगा, क्रिसमस आ जाएगा। क्रिसमस आ जाएगा तो क्रिसमस में वो किस तरीके की चीज़ें होंगी, मतलब लाइक अगर आपने मतलब हम लोग ज़ाहिर बीइंग मुस्लिम हम लोग भी छोटी ईद या बड़ी ईद हमारे भी एक बड़े मेजर इवेंट्स होते हैं, वो चीज़ें हम करते हैं। लेकिन अगर आपने मुल्क से बाहर कोई क्रिसमस के आसपास अब कभी गए हों या कभी एक्सपीरियंस किया हो खास तौर पे इधर, तो वो शहरों के रंग बदले होते हैं। वो क्रिसमस ट्री बना हुआ है हर जगह पे, वहाँ सेल्स लगी हुई हैं, वहाँ लोग बाहर फिर रहे हैं, वो जिस तरीके से चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। अब उन दिनों पे वो एक गोरे ने जितना कुछ भी सेव किया होता है वो क्रिसमस पे जाके खर्च कराता है, वो शॉपिंग करता है, वो गिफ्ट्स लेता है, वो दोस्तों रिश्तेदारों के पास जाता है, मिलता है। सो उसके सारे का सारा जो एक मतलब परचेज डिसीजन या उसका जो कंज्यूमर बिहेवियर बीइंग अ कंज्यूमर, दैट इज इंटायरली डिफरेंट। तो जब आप ये देखते हैं कि उसमें मतलब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट सीजन्स, राइट, या कोई इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, तो आपको अपना एंटिसिपेटरी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स आपका छोटा सा एक स्टोर कीपर भी है, उसको भी पता है कि यार 2 दिन बाद ईद है, तो उसने चीनी भी ज्यादा लेकर रखनी है, उसने घी भी ज्यादा लेकर रखना है, उसने चिकन भी ज्यादा मेंटेन करना है। सो वो एंटिसिपेट कर रहा है, बिकॉज राइट आफ्टर अ वीक there would be Eid, and Eid is a bigger event, and everybody there would be buying in bulk। और वो ज्यादा उस चीजों की लाइक कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा बिकेंगे, चिकन ज्यादा बिकेगा, उसके अलावा जो है वो केक्स, मिठाइयाँ, और वो हर तरह की सीजनल। तो आप भी देख लेते हैं कि आपका क्या है और आपने किस तरीके से। सीजनल इज ऑल अबाउट सीजन। आई मीन यू आर गोइंग थ्रू विंटर सीजन, यू आर गोइंग थ्रू समर सीजन। समर सीजन में क्या डिमांड होगी, विंटर में क्या होगी। तो उसमें होता क्या है, लाइक आप रेफ्रिजरेटर और एसी, अब गर्मियों का सीजन है जी, इस वक्त आपको फ्रिज चाहिए, आपने एसी लेना है, आपने एयर कूलर बाय करना है, ये सारी चीजें। तो अब जो कंपनी है वो क्या करेगी कि वो जब विंटर आ जाएगा, और विंटर वाली मतलब डॉलिंस क्या करेगी कि वो सर्दियों में बैठ के अपनी प्रोडक्शन को एनहेंस करेगी, और वो पूरी तैयारी करेगी कि जैसे ही गर्मियों का मौसम आएगा 2021 का, तो उसकी जो डिमांड बढ़ेगी एसियों की और फ्रिजों की, तो मैं उसमें इतना सारा काम करके इतना सारा स्टॉक मेंटेन करके रखूंगा ताकि जो समर सीजन ऑफ 2021 उस पर मैं मैक्सिमम मार्केट शेयर ले सकूं और उसमें मैक्सिमम चीजों को अवेलेबल कर लूंगा। तो इट मींस यू आर डीलिंग इन सीजनल स्टॉक मेंटेनेंस। ये सारी वो चीजें हैं जो स्पेकुलेशन स्टॉक भी यही है कि यार किसी खास जगह पे खास एक वजह से जो है वो की डिमांड बढ़ सकती है, डिमांड कम हो सकती है। तो मतलब ये वो एग्जांपल दे रहा है कि मिडल ईस्ट में अल्लाह ना करे कोई जी मतलब हालात ख़राब हो गए, वहाँ तेल के बड़े ज़खायर हैं, वहाँ से तेल निकलता है और पूरी दुनिया में सप्लाई होता है, और वहीं पे कोई प्रॉब्लम हो गया, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई, वहाँ से कोई अल्लाह ना करे कोई हालात इस तरीके ख़राब हो गए कि ऑयल की सप्लाई बंद होगी, तो क्या होगा। ऑयल की सप्लाई बंद हुई तो आगे बाकी मुल्कों में ऑयल की शॉर्टेज हो जाएगी। अब ऑयल की शॉर्टेज हो जाएगी, जैसे जैसे पिछले दिनों वो जब जैसे ही तेल सस्ता हुआ तो हम लोग खैर से इतने मुसलमान हैं जो हमारे पास स्टॉक किया हुआ तेल था, तो हमने वो देना बंद कर दिया, पेट्रोल वगैरह हमने देना बंद कर दिया। तो आप अगर जब देख रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की अनसर्टेनिटीज मार्केट में आ सकती हैं, तो ठीक है, अगर आपने अच्छा परफॉर्म करना है तो फिर आपको 2-4 साल आगे देखना पड़ता है चीज़ों को, ताकि आप अच्छा एक लेवल मेंटेन कर सकें और आपका जो क्लाइंट है वो सफर न कर सके। सो दिस इज हाउ यू डू।
पाइपलाइन इन्वेंट्री भी एक इन्वेंट्री होती है, दैट इज इन ट्रांजिट स्टॉक जो होता है। अब जाहिर सी बात है, आपका स्टॉक कराची है, आप बैठे हुए फैसलाबाद में, अगर आपको कराची से कोई चीज़ मंगवानी है तो कराची से फैसलाबाद में आते हुए मुमकिन है कुछ 4 दिन लग जाए। अगर अल्लाह ना करे हालात ख़राब है तो वो 20 दिन भी फंसा रहेगा आपका सामान। और सेम इज़ द केस, अगर कोई चीज़ आप बाहर से मंगवा रहे हैं और वो वाया समंदर आ रही है, बहरी जहाज़ों में वो किसी तरीके से आ रही है, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर आप एयर आजकल जैसे जहाज़ सारे उन्होंने बंद किए हुए हैं और ये कोविड की वजह से वो सारी फ्लाइट्स पूरा डिस्टर्ब हुई हुई हैं, तो आपका वो जो स्टॉक है वो कहीं फंसा हुआ है, तो वो स्टॉक जो फंसा हुआ है, जो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, दैट इज समवेयर इन ट्रांजिट, दैट इज समवेयर in between the both destinations, so that is pipeline inventory। तो वो भी आपकी इन्वेंट्री जो है उस पर भी आपका पैसा भी लगा हुआ है, आपकी सारी चीजें भी हैं। डेड स्टॉक इज अनदर फॉर्म कि आप चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं, so no one is buying that। Either the things are older versions of the things, they have become obsolete and people are no longer to buy that product, वो आपका डेड स्टॉक है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा ना कि आपका एक सीजन का जब पीक शुरू हुआ तो आपने उसको बड़े महंगे पैसों में चीज़ को बेचना शुरू कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि जो है वो लाइक सीजन वो आउट होना शुरू हो गया, तो आपने उस पर 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ, और विन जो थॉट के यार अब तो सारी दुनिया माल खरीद चुकी है और ये जितना भी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं, अगर मैं इसको नहीं बेचूंगा तो अगले साल मैं इसको कहाँ रखूंगा। ठीक है, मुझे तो अपना स्टोर क्लियर करना है, अपने गोदाम जो है वो साफ करने हैं, अपनी शेल्फ्स क्लियर करनी है, तो अब क्लियरेंस सेल्स के नाम पे सेल लगा देते हैं, सब लोगों को टेक्स्ट कर देते हैं कि जी अप टू 70% ऑफ, 80% ऑफ। आप आए जो चीज छोटी बड़ी साइज ऊपर नीचे जो भी है बस इसको निकालें, दैट इज डेड स्टॉक बेसिकली, तो आपने उससे जान छुड़ानी होती है। सो दिस वर डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेंटरीज एंड स्टॉक्स। इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट्स क्या है? अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि वाई डू वी विश टू मेंटेन राइट लेवल ऑफ इन्वेंट्री, बिकॉज पैसे लगते हैं यार इन्वेंट्री रखने पे। अब एक चीज़ नहीं बिकेगी तो मेरे पास पड़ी रहेगी तो मेरे लिए अजाब बना रहेगा। एक चीज़ मैंने कम खरीद ली और डिमांड ज़्यादा होगी, मैं अपने क्लाइंट को पूरा न कर सका, दैट वुड बी अगेन बैड थिंग ऑन माई पार्ट। मैं ये भी नहीं करना चाहता। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास खर्चा भी ना हो और मेरा क्लाइंट भी मेरे से नाराज ना हो, एंड आई शुड रन माई कंपनी बेटर वे कि वो तो ऑप्टिमम लेवल कैसे। अब कॉस्ट रिलेटेड इश्यूज है ना सारे। चले, वो कहते हैं जी ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कहता है मैं डिवाइड करता हूँ, तो वन इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड थर्ड वन इज रिसीविंग कॉस्ट। जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, भाई अपने बंदे बैठाए हुए हैं जो वहाँ देखते हैं, करते हैं, वो चीज़ों को पसंद करते हैं, ऑर्डर करते हैं, वो ईमेल कर रहे हैं, वो उसके वेट में बैठे हुए हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तो आ रही है ना ऑर्डर करने पे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जब आपकी डील हो जाती है, फिर वहाँ से जो आपको कैरेज पड़ेगा आप खुद से उठाएंगे, वहाँ से चीज़ जाएंगी वो भी पड़ेगी। रिसीविंग कॉस्ट, फैक्ट्री में अपने बंदे खड़े किए हैं, आपको पता है जी आज माल आना है, आपका सारे का सारा लेबर रात को वेट कर रहा है, उन्होंने उसको अनलोड करना है, रखना है, तो 100 तरह के कॉस्ट है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और रिसीविंग कॉस्ट। चलें, फाइनेंशियल कॉस्ट तो है ये ना, ऑफ कोर्स वट एवर यू आर बाइंग यू आर पेइंग फॉर दैट, उसके लिए आपका पैसा तो लग ही रहा है। देन स्टोरेज एंड इन्वेंट्री और हैंडलिंग कॉस्ट। स्टोरेज क्या मुराद है? अब गोदाम में जगह नहीं है भाई, ऊपर रखेंगे नीचे रखेंगे, बारिश आ जाएगी, धूप है, टेम्परेचर ऊपर है नीचे है, कोल्ड उसको स्टोर करना है, हॉट स्टोरेज उसको चाहिए, क्या चाहिए? तो जाहिर सी बात एक चीज़ रखी गई तो उसने आधा गोडाउन आपका वो कर लेना है कवर, तो पीछे बाकी चीज़ें कहाँ रखेंगे, तो स्टोरेज कॉस्ट भी आती है। इन्वेंट्री रिस्क क्या होता है? रिस्क यही है कि यार चीज़ यहाँ पड़ी ख़राब हो सकती है, चीज़ यहाँ से चोरी हो सकती है, मैं चीज़ इधर रखूँ उधर रखूँ, उस पर चौकीदार बैठाऊँ, उस पर कैमरे लगाऊँ, उस पर पैसे लगाऊँ, क्या करूँ? सो ऑल दीज आर द कॉस्ट्स राइट विच आर रिलेटेड। इन्वेंट्री तो मल्टीपल तरह की हो सकती है, इन्वेंट्री सस्ती हो सकती है, इन्वेंट्री महंगी हो सकती है। ठीक है जी, बहुत छोटा इक्विपमेंट बहुत महंगा हो सकता है, बहुत बड़ा इक्विपमेंट बहुत सस्ता हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या इन्वेंट्री है, आपकी क्या कंपनी है, क्या कंपनी नहीं है। गोल्ड है जी, गोल्ड आपने बहुत महंगा है यार, गोल्ड थोड़ा सा भी एक इसमें हैंडल हो गया। ठीक है, आपने वो अक्सर लोगों को देखा बेचारे वो पैसे लेके जाते हैं, उन्होंने अपनी वो शर्ट के नीचे पता नहीं वो कितनी जेबों वाली सिलवा के वो कमीजें पहनी होती हैं, उसमें वो पैसे लेके बड़ी मुश्किल जाते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि रास्ते में रिस्क क्या होता है कि जो किसी को पता चल गया तो बंदा मार के भी आपके पैसे ले जाते हैं। सो दिस इज हाउ के इन्वेंट्री को मेंटेन करना, दैट इज ऑल। स्टॉक आउट कॉस्ट स्टॉक आउट कॉस्ट सिंपल ये है कि जो यू रनिंग आउट ऑफ स्टॉक, अब आपके
आपके पास एक चीज थी, क्लाइंट आपसे लेने आता था, आपने कहा भाई नहीं है, क्लाइंट कह गया यार ये यार देख लेना पिछले दिनों यार सिंपल डेटॉल की शीशी नहीं मिल रही थी, आपको अंदाजा होगा ये मेडिकल स्टोर से। अब कितनी अजीब बात है कि जी आप कहें कि यार मैंने डेटॉल लेने गया हूँ और वो बंदा कह रहा है भाईजान डेटॉल नहीं है, ठीक है जी मास्क नहीं है, फलां चीज नहीं है। मतलब वो पैराडॉल तक और इस तरह की छोटी छोटी जो टैबलेट्स नेम्स और वो जो रूटीन की टैबलेट्स हैं वो भी स्टॉक आउट हो रहे हैं। तो ये सारी कॉस्ट होती है, फिर आपका दिल नहीं करता दोबारा उस फार्मेसी पे जाने के लिए, दिल नहीं करता दोबारा उस बंदे के पास जाने के लिए। सो दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ठीक है। कितना टाइम है हमारे पास? कुछ 4 मिनट है, चले हम कोशिश करते हैं। साइकिल स्टॉक इन्वेंट्री मॉडल, यानी दिस इज हाउ यू मेंटेन द राइट लेवल और ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा, मैं पहले तो कैपिटल डी दैट शोज एनुअल डिमांड ऑफ द आइटम, राइट, एक साल में वो आपको आइटम कितनी चाहिए। स्मॉल डी दैट डिनोट्स डेली डिमांड, रोजाना आपको वो आइटम कितनी चाहिए। ए स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर, एक ऑर्डर पे कुछ फिक्स्ड कॉस्ट आती है, कुछ मैन्युफैक्चर वो आपकी ओवरहेड्स आते हैं, राइट, मतलब आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रक जा रहा है, ट्रक में अब 10 चीजें रख लें, ट्रक में अब 20 चीजें रख लें, तो ट्रक का पेट्रोल, ट्रक का ड्राइवर की तनख्वाह, वो सारी चीजें। सी इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आइटम, राइट, ये सारी चीजों को याद रखिए। स्मॉल आई दैट इज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर रुपी ऑफ द इन्वेंट्री पर ईयर, राइट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर रुपी ऑफ द इन्वेंट्री पर ईयर, यानी एक साल में उस इन्वेंट्री की कॉस्ट ₹1 के हिसाब से टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। कैपिटल क्यू इज ऑर्डर साइज, कि आपको ऑर्डर साइज कितना चाहिए, एंड एच इज इक्वल टू इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, और इट्स फॉर्मूला सी इंटू आई इज इक्वल टू एच, यानी ये सी जो कॉस्ट पर यूनिट और आई के जो हमने ₹1 की एक साल की कॉस्ट है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट निकल आएगी एच में। चलिए मैं जल्दी से नीचे जा रहा हूँ जी, इस फिगर पे आइएगा, that is known as figure 4.3 impact of order size on inventory related cost। चलिए ये है origin, लेफ्ट साइड पे हमारा x एक्सेस पे we are measuring optimum order quantity size and y एक्सेस पे हम लोग कॉस्ट ले रहे हैं। अच्छा, दो तरह की चीजें, एक ये हमारे पास एक कर्व है, एक हमारे पास ये कर्व है, ठीक है। अब ये उसने कहा कि दैट इज द ऑप्टिमम ऑर्डर, यानी ये हमारी क्वांटिटी और इसके रिलेटेड इधर कॉस्ट आएगी, ठीक है, ये दिस इज क्वांटिटी, दिस इज कॉस्ट। अच्छा, इधर से नीचे आए तो आपकी कॉस्ट ये देखें कम होती जा रही है, कॉस्ट कम होती जा रही है, क्वांटिटी आपकी बढ़ती जा रही है, ऐसे आते जाएंगे, कॉस्ट कम होती जाएगी, क्वांटिटी। अब बहुत ज्यादा बल्क में बाय कर लेंगे तो क्वांटिटी आप ऑर्डर आपका बढ़ जाएगा, कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी। मैं इस कर्व को देखूं, ये नीचे से इधर को जा रही है, इससे क्या है, जैसे ही ऊपर जाती जा रही है तो क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है, कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, ये देखिए ऐसे ही। अभी डिपेंड करता है ना कि प्रोडक्ट क्या, क्वालिटी क्या। अच्छा, वो कहता है कि फिर यार एक पॉइंट ऐसा आएगा, मैं इधर से कॉस्ट को कम करना शुरू करूंगा, क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, मैं इधर से जाऊंगा तो कॉस्ट और क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एक ऐसा सर्टन पॉइंट आएगा जिसपे मेरे लिए ऑप्टिमम होगी कॉस्ट भी और क्वांटिटी, राइट लेवल ऑफ कॉस्ट भी मैं अपनी अचीव कर लूंगा जो मैं इंटेंड कर रहा हूँ, और जो मुझे जितनी सर जाता है मेरा क्वांटिटी को मेंटेन करने पे, तो उस लेवल पे अचीव कर लूंगा। तो वो कहते हैं जी दैट इज द राइट, वो कहता है मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए और मुझे इतनी कॉस्ट में आपकी बियर कर सकता हूँ। अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है, मैं इधर जाता हूँ तो मेरी क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है, मेरी कॉस्ट कम हो जाती है, तो उसमें मेरी हैंडलिंग और कैरिंग कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। आई होप कि इसकी कुछ ना कुछ समझ आई होगी, वरना आप उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। That is, we are looking for, the optimal order quantity, capital Q is equal to 2AD divided by H square root. 2 हो गया, A was what, D was what and H was what? H was equal to C into I. C क्या थी cost, I क्या था उसका per unit के हिसाब से carrying cost, right? D was, बैक जाइए, कैपिटल डी क्या था उसका एनुअल डिमांड, ठीक है। एनुअल डिमांड को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, डिवाइड में उसको एच से करूंगा, उसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, मेरे पास ये चीज आ जाएगी।